So, hello guys. Today we are going to discuss our new topic, which means use of the. And I am Sonu from OG English classes. Welcome to you in our session. In particular session, we will see how to use of the in the context of sound of the and the plus vowel sound plus consonant sound. Okay. So let me show you something regarding our study plans. We have covered all videos regarding articles a and how to it is used or not to be used. Okay, so there is something regarding on your coming exam. Okay, it will see in your March month. So I think I would like to share with you our use of the. This is also part of article. We have covered a and now our new point is use of the. Okay, so we will continue the series of the. Let's continue guys. द दी प्लस वॉवल साउंड, यानी कि हम दा को दी कब पढ़ेंगे जब हमारा वॉवल साउंड आएगा. लेट्स वी हैव सम एग्जांपल्स टू elaborate the topic. The point is the plus vowel sound, the hour, the uninvited person, the end of park, the employees. Okay, similarly आपको दिख रहा होगा कि दा लिखा हुआ है तो हम इसको सिंपल दा पढ़ सकते हैं. The end of park, the employees. But we have written on that board, we have seen and we are looking on the particular session the plus vowel sound. Suppose the hour, not the hour, the uninvited person, not the uninvited person, the end of park, the end of park, the employees, because you have seen here guys e uninvited person, hour, h हमारा साइलेंट है तो वो हमारा क्या होगा, इसको करेगा डिनोट, तो हमारा एस साइलेंट होके हमारा आएगा आवर. क्या आएगा? आवर. आवर, ठीक है, आवर. सो विच मीन्स वी हैव some topics, sorry, some examples. Okay, so this is the main concern of this video, the plus vowel sound. Let's suppose our new point is the plus consonant sound, the plus consonant sound, which means हमें यहाँ पर देखना है कि दी के अलावा हम दा को कहां पढ़ सकते हैं और दा को सिर्फ और सिर्फ दा हम कहां पढ़ सकते हैं. ओके गाइस, लेट्स डिस्कस. द हाउस, द पार्टी, द यूनिकॉर्न, द किड्स. आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट साउंड है हमारा एच है, पार्टी है, यूनिकॉर्न है, किड्स है. सो गाइस, द हाउस, द पार्टी, द यूनिकॉर्न, द किड्स. आई थिंक आपको ये वाला जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा कि दा को हम कहां पढ़ते हैं और दी को कहां पढ़ते हैं. ठीक है गाइस, तो अगला जो पॉइंट आएगा और अच्छा हो जाएगा आपको, जो आपकी हेल्प करेगा आर्टिकल दा को समझने के लिए. सो प्लीज कीप लर्निंग रिगार्डिंग आवर कमिंग एग्जाम्स गाइस. यू डोंट फॉरगेट टू हाउ टू मेक योर ओन इमेज in this world. Okay guys, so please do not leave your free. Okay, in the context of be a learner, be learner guys, be learner, please, because this is our mainly important session on our preparation. It will very helpful to you, your preparation as well as your mind understanding, conceptual clarity also. So this is the main point, use of the plus vowel sound and so on. Okay guys, थोड़ा सा शोर यहाँ पर होगा, इसको प्लीज माइंड मत कीजिएगा. होता है, देखो स्टार्टिंग करते हैं, कोई नई चीज करते हैं तो शोर शराबा थोड़ा बहुत हाई हल्ला होगा. बट आपको मैं बता दूं, दिस इज नॉट अ फ्री कोर्स गाइस, दिस इज अ पेड कोर्स which will be delivered to you in your context of your learning as well as your preparation guys. This is the already paid batch. This is very helpful to you. Okay guys, so please इसको देख लो, लिख लो, समझ लो, घोट के पी जाओ, कैसे करो. ठीक है. सो गाइस, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ, यानी कि द का यूज हम कहां कर सकते हैं और उसके अलावा. लेट्स डिस्कस. ओके, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ईटीसी एक्सेट्रा. ओके, होली बुक्स जैसे गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है, इस तरह से. माउंटेन रेंजेस, द हिमालयाज, द आल्प्स, द ईस्टर्न घाट, ईटीसी. ठीक है. प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशंस,
द सन, द मून, द स्टार्स, द गंगा नदी, द सरस्वती नदी, इस तरह से, ठीक है ना गाइस, द अरेबियन सी, इस तरह से, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, डेजर्ट्स, द इक्वेटर हो गया, द नॉर्थ पोल हो गया, एक्सेट्रा। नेम ऑफ ट्रेन्स, होटल्स, शॉप्स, द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। तो गाइज ये सब चीजें हैं आपकी दा के लिए कि आप दा का यूज और कहाँ कर सकते हो, ठीक है। और इनको पढ़ते आप समझ जाओगे, हाँ भाई दा यहाँ पे आएगा, बाकी जो हमने और पॉइंट हम आगे करेंगे डिस्कस, उसमें आपको हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। तो लेट्स कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। इट इज वेरी क्रूशियल गाइज टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द, ओके। नोट, ये आप इसको नोट करेंगे, दा इज नॉट यूज्ड बिफोर माउंटेन पीक्स, ओके। यानी कि दा का यूज हम हिमालय के लिए तो करते हैं, जितनी भी रेंजेस होंगी हिमालय की होंगी और माउंटेन की होंगी, इस तरह से, तो बट हम उसका जो यूज है वो पर्टिकुलर किसी चोटी या किसी प्रॉपर नाउन, यानी कि अगर मैं बोलूं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो ये चोटी का नाम है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा। बट मैं बोल लूं कि द माउंट एवरेस्ट, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, विच मीन्स द इज नॉट यूज्ड बिफोर माउंटेन पीक्स। किसी पर्वत की चोटी है उसके लिए हम लोग द का यूज नहीं करेंगे गाइस, ठीक है। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट, ओके। अगर अपना नोट सेकंड में आप लिखेंगे गाइस, इफ द नेम ऑफ एन ऑथर इज यूज्ड, द नेम ऑफ अ रिलीजियस बुक द इज नॉट यूज्ड। कहने का मेरा मतलब ये है कि दा का यूज, आप इसको उतार लो प्रॉपर पहले, ठीक है, ये लो उतार लो प्रॉपर। दा का यूज हम वहां भी नहीं करेंगे जहां पर किसी राइटर का नाम होगा और कोई एक बुक होगी जिसके बारे में वो बंदा बता रहा है, ठीक है, या कोई राइटर है जो एक धार्मिक किताब के ऊपर वो बोल रहा है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया वाल्मीकि रामायण, किसे लिखी गाइस, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण। अगर मैं यहां लिख दूं द वाल्मीकि रामायण, द वाल्मीकि रामायण, या फिर मैं ये लिख दूं वाल्मीकि द रामायण, मिटाई देता हूं, ठीक है। देखो मैंने यहां बताया आपको, इफ द नेम ऑफ एन ऑथर इज यूज्ड, द नेम ऑफ रिलीजियस बुक, द ऑथर इज सॉरी द इज नॉट यूज्ड। यानी कि किसी ऑथर की जो बुक है उससे पहले हम दा नहीं लगाते हैं। वाल्मीकि रामायण, तो ये तो हमारा गाइस ठीक हो जाएगा, ये हमारा ठीक हो जाएगा। बट द वाल्मीकि रामायण गलत है, वाल्मीकि द रामायण ये भी गलत है, ओके गाइस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धीमे धीमे करके हम सारे जो पॉइंट्स हैं, जो क्रूशियल टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स हैं जो नोट में है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह से सब कुछ कर लेंगे क्लियर, ठीक है। तो जब तक आप लोग प्लीज चीजों को देखें, लिखें, समझें, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा ना, साथ में एग्जाम आएगा तो आपको कंटेंट आपको प्रॉपर यहाँ मिलेगा, भरपूर मिलेगा। वीडियो थोड़ी लेट होंगी, 1 दिन में 2 दिन में आएंगी, बट वीडियो धीमे धीमे मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि जो पूरा सेटअप है उसके रिगार्डिंग चीजें बने यहाँ पे, ठीक है गाइस। जब तक के लिए आप सीखते रहें। और जो वोकैब का सेशन है हमारा, वोकैब का सेशन हमारा शॉर्ट्स के लिए ही आएगा। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई चीजें बड़ी करनी है, बढ़ानी है, तो प्रॉपर मैं उसको क्लास में लेके आऊंगा। बट जहां तक मेरा मानना है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो ना, तो वोकैब से भी आप कर लोगे जो मेरे शॉर्ट्स में। अदरवाइज देखता आगे क्या होगा, ठीक है। सो गाइस, until unless please keep watching this video session as well as keep learning. Thank you and good luck.